a genuine concern after reading the MMS leak obsession. Assalamualaikum Junaid, this is ABC. I hope you're doing well. I wanted to start by saying this honestly. One of the best additions to your recent series has been the comment section. Reading comments feels like an extension of the episode itself. It creates an organic connection between you and the audience. In fact, I now actively read comments while watching your episodes because they reflect what people are truly thinking. That brings me to the concern I wanted to share. In your recent episodes, I have repeatedly noticed comments popping up here and there about Omer aka Mary का 7 मिनट 11 सेकंड वाला वीडियो. Lines like 7 मिनट 11 सेकंड वाला वीडियो का लिंक दे दो, ping me for the link, and similar requests are casually thrown around as if this is normal conversation. My genuine question is, where is our youth heading? Is a leaked MMS involving a shameless man and a woman really the top priority of our youth today? Honestly, my brain is failing to comprehend. This obsession is not limited to YouTube comments. The same thing is happening on Twitter pages after pages, profile after profile, all talking about the same thing, pushing it into trends, turning it into an entertainment. What disturbed me even more is that most of these users are clearly under 25, and in many cases, it is obvious they are below 18. This is the same generation that loudly claims pride in Islamiyat, haya, and modesty. The same people who repeat slogans like Pakistan ka la ilaha illallah and explain that Pakistan means pure. So where does this curiosity, obsession, and moral numbness come from? How did we reach a point where leaked private content is discussed more passionately than dwindling economic condition of a country, or human rights issues, education, youth employment, mental health of our people, or even basic decency? Because all these things don't give you an orgasm. It's not just limited to online trolls. News channels and media organizations are going to the concerned person's village and interviewing neighbors and asking things like, Mary कैसा इंसान है, उसकी मैरिड लाइफ के बारे में बताएं, asking questions about the woman's past and her current whereabouts. I'm not writing this to sound morally superior. I'm genuinely worried about the disconnect between what we claim to stand for and what we actually consume. Worried about how casually we normalize voyeurism, humiliation, and character assassination, especially when it involves young people. It feels like as a society, we are slowly hollowing ourselves from the inside while pretending everything is fine from the outside. I felt this was worth sharing with you because your platform reaches exactly the audience that needs to hear uncomfortable questions, not easy answers. Jazakallah for reading and consistently creating content that at least gives space to these conversations to exist. Thanks and regards for hearing me out. So जैसा कि आपने सुना कि ये ईमेल है, एक सेकंड यार क्या कह रहे हैं, अरे भाई नहीं जाना ना मैंने यार. Alright, sorry. So जैसा कि आपने देखा ईमेल है और it's about that the infamous clip that I talked about, जो that was doing rounds last month. और भी होता है कि वीडियो लीक होती है, खुद करवाई गई हो या लीक हो गई हो वगैरह वगैरह. There is always these fake profiles कि आप कोई भी चीज़ पोस्ट करें, अगर आपका कोई पेज है, आप वीडियो पोस्ट करते हैं, जैसे मैं पेज पे करता हूँ, तो नीचे एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट आता है, इन लड़कियों की लीक्स अवेलेबल हैं, क्लिक करो, मेरे प्रोफाइल में आओ, डीएम में आओ वगैरह वगैरह. अब आई डोंट नो हाउ दिस पीपल ऑपरेट, या ये क्या होते हैं, ये बॉट्स होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये बेचते भी हैं, ये पैक्स में बेचते हैं कि लाइक ओके 50 वीडियो का पैक्स है और उसमें जैसे कोई फेमस टिकटॉकर है उसकी लीक हुई है, या कोई फेमस इन्फ्लुएंसर है उसके नाम के साथ, या फिर बीच में वो एक बच्ची है एलिना आमिर, उसकी फेक वीडियोस बना के लोग बेच रहे थे. इफ़ यू रिमेंबर अरूप जो डकी भाई की वाइफ है, उनकी एक फेक वीडियो बना के लोग एआई वाली फैला रहे थे. सो या मोरल बैंकरप्सी तो एब्सोल्युटली है. देखिए आपने ये बातें की तो आम दिनों की बातें. आज है दूसरा रमज़ान, ठीक है, आज अगर वीडियो लीक हो जाए, आप देखें लोग देख रहे होंगे, मांग रहे होंगे एक दूसरे से, लोग कमेंट कर रहे होते हैं यार मुझे इनबॉक्स के पास टोटा रखा हुआ है वगैरह वगैरह, या कुछ लोग कमेंट कर रहे थे मेरे पास पूरे पार्ट्स अवेलेबल हैं, प्रोफाइल पे आ जाओ, आईडी पे आ जाओ. या फिर नेटफ्लिक्स कोई ये इस तरह की जो भी इनकी सीरीज़ होती हैं, वो कौन सी थी, कोई डेविल वाली 365 डेज, तो वो ट्रेंड कर रही होगी नंबर 1 पे. आप नंगी से नंगी सीरीज़ डाल दें, अगर नेटफ्लिक्स आज डाल दे, वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही होगी. कहाँ का इस्लाम, कितने % यहाँ पे जी नॉन मुस्लिम्स हैं. अच्छा नॉन मुस्लिम्स भी हैं तो उसका मतलब नंगे नहीं है ना, हैं तो इसी कल्चर के. तो बस ये चीज़ें हैं. देखिए हिपोक्रेसी ही हमारा सबसे बड़ा हमारा मसला ही हिपोक्रेसी है. आप जितने गलीज़ कमेंट्स उठा लें, आप उन प्रोफाइल्स पे जाएं, या तो किसी रिलीजियस पार्टी के लीडर की तस्वीर होगी, ठीक है, ये एक मखसूस पार्टी की तो होगी, या फिर ये कि फुल जो है मक्का मदीना की फ़ोटो लगी होंगी, लेकिन गलीज़ तरीन बातें करते होंगे, गलीज़ तरीन कमेंट्स करेंगे लड़कियों के बारे में, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में,
गंदी गंदी गालियाँ लिखते हैं। और ये पैटर्न मैं देख, ऐसे लोग, अच्छा किसी और का प्रोफाइल हो कुछ भी हो, मैं ज़रूर इस तरह के वो खोलता हूँ और मैं उनको खुद ही ब्लॉक कर देता हूँ कि यार ये गंद मुझ तक आए ही ना, तो पहले ही मैं इसको दूर कर दूँ। तो आप भी ये किया करें, जब भी आपको इस तरह के गलीज़ लोग नज़र आए तो आप उन लोगों की तस्वीरें देखें, वादा उड़ा होता है, और इनकी हैवानगी कमेंट्स में या लड़कियों के इनबॉक्स में जिस तरह की गलीज़। एक खातून है, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पिछले दिनों स्क्रीनशॉट लगाए हुए थे, एक दीनी जमात से उनका ताल्लुक था, पॉलिटिकल पार्टी से, और वो उनको पोर्न वीडियोस भेज रहे थे, वही ना बंदर कुछ। तो इस हिपोक्रेसी ने हमें बेसिकली मार दिया है। ये तो हो गई एक बात। रही बात ये कि देखिए वॉयरिज्म हो गया, गॉसिपिंग हो गई, दीज थिंग्स प्रीडेट सोशल मीडिया। सो ये अभी की प्रोडक्ट नहीं है। अब ये दिखती ज़्यादा है क्योंकि ज़ाहिर है सब जुड़े हुए हैं, वरना दे ऑलवेज एग्जिस्टेड। नाउ जस्ट बिकॉज दे ऑलवेज एग्जिस्टेड डजंट मेक इट राइट। वॉयरिज्म इसलिए बिकता है, देखें इंटरनेट इज़ फुल ऑफ पॉर्न, लेकिन अगर आज पता चल जाए कि कोई किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई वीडियो, जैसे इंडिया की एक वीडियो 18 मिनट वाली, 19 मिनट वाली, जैसे 7-11 इसका चल रहा है, वैसे उसका भी चल रहा था पिछले दिनों, वो इंडिया की एक वीडियो थी, वो यंग टीनेजर थे, लड़का लड़का। तो सो वैसे तो इंटरनेट इज़ फुल ऑफ पॉर्न, बट दैट इज़ फैंटेसी। ओके, दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स। वो जो हो रहा है, एक स्वीडिश ब्लॉन्ड है या फिर कोई एक मैग्नम ब्लैक है, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर, दिस इज़ ऑल फीडिंग एंड सीडिंग योर फैंटेसी कि वो इस तरह होता होगा, कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आता होगा और ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना। यार रमज़ान में क्या बातें करवा रहे हैं। एनीवे, बट व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट के यार किसी फलाने यूनिवर्सिटी की, लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी की या कराची की किसी यूनिवर्सिटी की लड़की की ली हुई है, लोग फ़ौरन जाते हैं क्योंकि उसमें फेमिलियरिटी है। बिकॉज दैट पर्सन लुक्स लाइक मी, दैट पर्सन ऑल्सो ईट्स दाल चावल एज मच एज आई डू, यू नो। तो वो जहाँ फेमिलियर चीज़ें हो जाती हैं ना, तो वहाँ आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। हमारी ज़बान बोल रहे हैं वगैरह। अच्छा, एक तो चीज़ हो कि किसी आर्टिस्ट ने बना के डाली हो, उस पर नहीं। एक होगा कि यार गलती से निकल गई, तो जो गलती, उसका थ्रिल ज़्यादा है। So people are not chasing porn in this context. They're chasing the thrill that this person is talking in Punjabi. वही पंजाबी जो हम आम फहम सुन रहे होते हैं, पंजाब में हर जगह लोग बोल रहे होते हैं वही लैंग्वेज। इनफैक्ट इट्स सो फनी, अभी आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन पंजाब, एंड बाय अ लॉट ऑफ टाइम आई मीन 5 days। ये बातें कर रहे थे तो मेरे जहन में वही वीडियो चल रही थी, बिकॉज ये वही लैंग्वेज बोल रहे थे, राइट। तो वो एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है। एंड द फैक्ट कि ये चीज़ लीक हुई है, यानी उनका कंट्रोल नहीं था। एक तो होता ना भाई मैंने खुद ही बनाई, मतलब मेरी प्रोडक्शन है, रिलीज़ कर दी, तो उसमें वो एलिमेंट ऑफ शेम है ही नहीं। अब मियाँ खलीफा की कोई चीज़ आ रही है, उसमें कोई एलिमेंट ऑफ शेम थोड़ी है। बॉनी ब्लू की कुछ डाल रही है तो एलिमेंट ऑफ शेम थोड़ी है। वो तो कह रही है हाँ भाई ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा ओनली फैंस है, वगैरह वगैरह, राइट। अगर चाहे एक चीज़ निकल जाए हाथ से, हमारे पास शेम का एलिमेंट आ जाए ना कि हाँ हम इसको शेम कर सकते हैं, उस पर लोग दौड़े दौड़े जाते हैं। तो ये मसला है इसका। अब रही बात कि ये इस तरह कमेंट्स क्यों आते हैं, तो वो कमेंट्स दे लीड यू टू अ टेलीग्राम का पेज, जो अमूमन लिखा होता है जी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। आपने पिछले दिनों नोटिस किया होगा कि आज गंजी स्वैग के बहुत क्लिप्स रील्स की फॉर्म में वायरल हो रहे थे, राइट। किसी ने ये काटा वो काटा वो काटा। अब किसी एक इंसान इतना ज़रूरी क्यों है कि मेरी वो चीज़ें काट के डाले। उसके पेज पे ऐसे 2 पेजेस थे, अब नहीं है। उन 2 पेजेस पे मेरा ही कंटेंट था, ठीक है। अच्छा, एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, ठीक है भाई, काट के डाल रहा है, लोग फनी समझेंगे, वही देख के चैनल पे आएंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ना मैं किसी को रोक सकता हूँ, कितनों को स्ट्राइक्स भेजोगे। बट उस चैनल पे और कुछ था ही नहीं। एक तो होता ना कि मेरा चैनल है, उस पर मैंने कभी इसकी वीडियो डाल दी, सिर्फ मेरी ही थी, मुझसे इतना प्यार किसी को हो नहीं सकता। तो वो इसलिए थी कि फ़नी वीडियोज़ बने, वो वायरल होंगी, फॉलोअर्स लाखों में जाएंगे, और जब उस पर 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे ऑर्गेनिक, तो कल को कोई मुझे बोल सकता है, कोई ब्रांड, लेट से मर्दों के जूतों का ब्रांड, जिसमें 2-3 लाख फॉलोअर्स हों, जिसमें ज़्यादातर 18 से 36 के लोग हों, क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट है वो इसी एज ब्रैकेट की है। यू कम टू द राइट प्लेस। और ये चैनल की आईडी उसको दी, आईडी आप बैठे बैठाए उस जूते के ब्रांड के पास 2 लाख, ठीक है उन्होंने अर्न नहीं किए, बट बैठे बैठे ऑडियंस तो मिल गई ना, क्योंकि आजकल अटेंशन कैच करना बहुत मुश्किल। तो सिमिलरली अब वो देखे दोनों चैनल गायब, वो बहुत अच्छी रील्स काटते थे, पता नहीं कौन थे वो बॉयज, बहुत अच्छी रील्स काटते थे, तो अब वो दोनों चैनल गायब हो गए। सिमिलरली ये जो कहते हैं जी मेरे टेलीग्राम पे हैं, मेरे टेलीग्राम पे हैं, तो वो अपने टेलीग्राम की मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं, उसकी उस ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। जब वो टोटो से, क्योंकि देखे सेक्स सेल्स, तो आप उससे खींचोगे, अब आपके पास पाकिस्तान के एक्सट्रीमली हॉर्नी 10 लाख बच्चे वहाँ मौजूद हैं, ठीक है। आपने लेट से एक टेलीग्राम का, मुझे नहीं पता उसके चैनल में कितने लोग फिट हो सकते हैं, बट लेट से फॉलोअर 10 लाख हो गए। अब आपने देखा भाई मेरे पास 10 लाख ये यंगस्टर्स तो हैं, अब कोई बेटिंग कंपनी
या कोई इस तरह की कंपनी जो ऑप्शनल ट्रेडिंग, फलानी ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, उनको चाहिए बच्चे। अब आप उसमें या तो उसका चैनल की आईडी चेंज कर दी, या फिर आपने उसमें डाल दिया हाँ ये टोटे तो देखो आप फलानी फलानी, साथ में यार ये अच्छा ऑप्शन है, इसमें बड़े पैसे बन रहे हैं। अब उस 10 लाख की ऑडियंस में 1000 बंदा भी अगर डाले, राइट, तो हो गया ना आपका काम, 0.1%, राइट। तो ये सारी गेम होती है। तो ये जिस तरह आप इतना देख रहे होते हो ना, तो वो खिदमत खल के लिए नहीं निकले कि आओ आओ मेरे पास बहुत सारे टोटे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पूरा ड्रॉप बॉक्स भर के आप लोगों के लिए रखा था। वो ऑडियंस जमा कर रहे होते हैं ओनली फॉर दिस। सो इसकी ये लॉजिक ये है कि इस तरह के आपके जो कमेंट्स दिख रहे होते हैं। अब रही बात कंजम्पशन की, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वी आर अ हिपोक्रेट सोसाइटी। हम कहते कुछ और, हमें स्लीवलेस लड़की बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फ़ोन सबके आप निकाल लें, आपको अच्छी तरह पता है लोगों के फ़ोन में क्या मवाद होगा। और मैंने आपको वैसे भी एग्जांपल दे दी, सोशल मीडिया गंदी गंदी गालियाँ, नंगे कमेंट्स, गंदे डीएम्स कर रहे होते हैं, उनकी प्रोफाइल आप देख लें, बाहर कुछ अंदर कुछ। तो वही चीज़ फिर ज़ाहिर है इंटरनेट पे भी रिफ्लेक्ट करेगी, और वो करती है बिल्कुल राइटफुली सो। यही हमारी यूथ है और यही हमारी ऑडियंस है। सैड टू से बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। पाकिस्तान में कोई एआई पे काम नहीं हो रहा, कोई सीरियस चीज़ इसलिए नहीं हो रही बिकॉज सारा फोकस ही, व्हाट डू यंगस्टर्स टॉक अबाउट। आप किसी चाय के होटल पे बैठे हैं, व्हाट कॉन्वर्जेशंस आर यू हेयरिंग? पॉलिटिक्स की बात करें, क्रिप्टो की बात, क्रिकेट की बात करेंगे, लड़कियों की बात करेंगे। कोई रहते कि एक होता है, आई वाज टेलिंग दिस टू समवन, कि यार कुछ बच्चे होते हैं उनका हंगर लेवल ही डिफरेंट होता है कि यार कुछ करना है लाइफ में। अब मैं जैसे कल टायर लगवा रहा था अपना, आसपास रात के 1:30 बज रहे थे, माई टायर वॉज आई काइंड ऑफ गिव अप। तो आसपास वो बच्चे थे, वो सब रेसर गाड़ियों में आए हुए थे, उनके पास गार्ड्स थे, उनकी एज ए लेवल्स की थी, ठीक है। रात को स्पीडिंग करेंगे, शोर करेंगे, और मैं यही देख रहा था उनकी कॉन्वर्जेशंस में कोई भी, ठीक है, एक petrol station is not the right place to discuss about scientific revolution. Nevertheless, you can very well judge a book by the cover. So yeah, focus नहीं है। तो वो एक हंगर, वो वाली ब्रीड अलग होती है जिनको ज़िंदगी में कुछ करना होता है। ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, एंड लाइक नो वंडर वी आर वेयर वी आर। सो यस। और इस पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस पर्टिकुलर वीडियो जिसकी आप बात करिए, इट वॉज एक्चुअली अ वेरी सैड वीडियो, बिकॉज इफ़ यू खैर माइनस तो आप नहीं कर सकते, इफ़ यू इग्नोर द सेक्शुअल पार्ट ऑफ इट एंड यू जस्ट लिसन टू व्हाट द वुमन इज सेइंग, इट्स एन एक्सट्रीमली सैड वीडियो एंड इट शोज द स्टेट ऑफ योर कंट्री, कि जहाँ उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई एंड द गाय कैन नॉट फुलफिल हर नीड्स, दैट्स वाई शी हैड टू लुक फॉर, आई एम नॉट गिविंग जस्टिफिकेशन, बट उसमें वो यही कह रही है, एंड देन शी इज़ बेगिंग द गाय कि तुम मुझसे शादी करे भाई, बिकॉज यू आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब एंड आई हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ something as basic as, which is my divine right. नहीं, डिवाइन राइट तो नहीं कह सकते, बट लाइक यू नो इट्स अ ह्यूमन राइट। शादी की है, शादी की कमिटमेंट्स में, बहुत सारी कमिटमेंट में ये भी है, इंसान की नीड है। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी सैड वीडियो, बट वही लोगों ने उसको बस मीम बना के रख दिया है, एंड दैट्स व्हाट इट इज़, सैड। और ये जो आपने बोला कि ये टीवी चैनल वाले पहुंच गए, देखें अब टीवी चैनल वाले ढूंढने क्या गए, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लाइक व्हाट आर यू देयर टू फाइंड। हाँ, 2 people were fucking in this room, now what is there for you, कि वो कैसा था, वो कैसा। ऑफ कोर्स देखिए, ये जो डिजिटल न्यूज़ चैनल्स हैं या टीवी वाले हैं, इनका काम सच और झूठ नहीं है, इनका काम है टू एंगर यू एज मच एज दे कैन। जितनी गुस्से वाली चीज़ डालेंगे आप, उतना क्लिक करेंगे आप, उतना ये आपको रेज बेट करते हैं, उतना कमेंट्स, उतने शेयर्स, उतना उनका रेवेन्यू। वरना उस कस्बे में वो क्या करने गई है वो लड़की के, वो ये कहाँ, इस कमरे में ये वाक़या पेश आया वगैरह वगैरह, लाइक वाई द फक वुड आई केयर, एवरी रूम गेट्स एक्शन इन दिस कंट्री भाई, मतलब लाइक वाई। और अभी वो भी चल रहा है, इमाद वसीम की शादी हुई है, देन एवरीवन इज मेकिंग वीडियो। आई मीन वाई वुड आई हैव एन ओपिनियन ऑन, लाइक whoever decides to be with someone, how does that impact my life? It doesn't, man. और रही बात ये कि वो सोशल मीडिया स्टार्स हैं या वो क्रिकेटर है, दे शुड लीड बाय एग्जाम्पल्स भाई, लाइक यू नो हैव बेटर हीरोज, यू नीड टू हैव बेटर हीरोज। देयर विल ऑलवेज बी शिटी स्टार्स, देयर विल ऑलवेज बी शिटी पीपल in every domain. You need to choose the right people. It's up to you. People will do what they have to do. मतलब शोएब मलिक का क्या ही उखाड़ लिया आपने, आता है ना टीवी पे अब। मतलब लाइक व्हाई पीपल ऑब्सेस्ड विद अदर पीपल्स लाइव्स, कि वो कौन किसके साथ बेडरूम में क्या है, हाउ डज इट अफेक्ट माई लाइफ। अगर वो ना भी करता शादी, मेरी जिंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा था, कुछ भी नहीं पड़ रहा था। सो लाइक यू नीड टू रियलाइज,
एक पॉइंट के बाद कि यार मेरी ज़िंदगी पे किसका इम्पैक्ट है या किसका नहीं है। हर चीज़ नॉइज़ है, इसके अलावा एवरीथिंग इज़ नॉइज़। और मैं जहाँ जा रहा हूँ इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, वही कपल, मेरा क्या लेना देना यार। हर कोई उन पर वीडियो बना रहा है, भाई क्यों बना रहे हो? जिसने जो करना है करने दो भाई, खल्ली वल्ली यार। उसके बच्चे थे, ये थे, वो थे, लाइक या आई मीन people leave their kids, people leave their spouse, sometimes people hate their spouses so much कि वो बच्चों का भी नहीं सोचते। I mean like, and women and men both do these things, you know, even women look around, ये सब करते हैं। इसमें कोई नई चीज़ क्या है? And like ये कि why are you looking for examples from such people, man? Like form your own opinion, form your own examples. I don't get it. पीछे पड़े हुए हैं. People have too much time, man. I don't have any final thought on this, वैसे. I mean, it's sad. It happens. Or this is what it is. I mean, any sort of leak, unless it's done खुद से, any form of leak, I see the people as victims. कि वो victim है, वो अब शिकार होगा इस चीज़ का. Now they have to live with it for the rest of their lives. उनके बच्चे बड़े होंगे, बच्चे माँ को गूगल करेंगे, माँ की वीडियोस ज़्यादा आएंगी. You know what I'm saying? जो खुद लीक करते हो तो उनका अपना हरामीपन है. I mean like that's up to them. उनको जो करना है करें. मगर जिनकी लीक हो जाती हैं, imagine a life. Imagine, put yourself in their place. Like everyone's seen your dick. Imagine everybody knows how you do it. It's an uncomfortable feeling to live with. एक तो था ना मोनिका लेविन्स्की, she had to live a life कि वो मतलब you know disgraced life, disgraced कि she was banging the president, right? But उसकी कोई वीडियो नहीं है. यहाँ पे वीडियो है and like everyone's seen it. Imagine you go, अब जैसे वो कुछ टिकटॉकर्स हैं जिनके बारे में कहते हैं भाई वो खुद ही निकाल देती हैं. I don't know man. But imagine going to a bazaar where everyone has seen you naked. Everyone. I mean like क्या यार. So ये तो विक्टिम होते हैं यार. और उसमें ये भी होता है कि देखिए आप अपना फ़ोन साफ़ कर लें, उसमें रह जाती हैं चीज़ें. एक बार एक चीज़ डिजिटली हो गई वो कभी भी नहीं जाती. विच इज़ वाई ऑलवेज नेवर एवर लीव योर ट्रेस. किसी को कोई वीडियो बना के भेजने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई तस्वीर भेजने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आपका फ़ोन ख़राब होगा, फ़ोन सही कराने जाएंगे, दुकान वाले का मैडम थोड़ा घूम के आ जाए, इसमें टाइम लगेगा. उसने तार लगानी है, आपका सारा डेटा इधर कर लेना है. अब आपकी सोच है. नाउ यूर ऑन द इंटरनेट फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर. सो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दी स्टुपिडिटीज़. जिसको आपसे वाकई मोहब्बत होती है वो आपसे ये वाली चीज़ें नहीं, वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट कभी नहीं छोड़ने देगा, एटलीस्ट फॉर हिज ओन 15 सेकंड का प्लेजर. सो बी वेरी वेरी माइंडफुल. वी आर स्टिल अ वेरी फर्स्ट स्मार्टफोन जनरेशन. आपने भी इसके प्रोज ही देखें, इसके कौन से भी आने हैं और अब आना शुरू हो रहे हैं. डोंट डू दीज थिंग्स. डू नॉट रिकॉर्ड. कोई ज़रूरत नहीं, कोई वर्ल्ड कप में नहीं वीडियो, कोई ओलंपिक्स नहीं हो रहे सेक्स के कि जी हम इसको रिकॉर्ड भी करते. हम रिकॉर्ड भी किस लिए कर रहे हैं? रिकॉर्ड बंदा कर ही इसलिए रहा है बिकॉज ही हैज़ टू शो इट टू हिज फ्रेंड्स. देयर इज़ नो अदर रीजन. सो डोंट फॉल फॉर दिस स्टुपिडिटी. ख्याल रखें. बाकी जनरेशन की बात मैडम जो आपने सवाल किया यही है, अब क्या कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.